इजाजत करो। गुजराती मुक्तक और उसके बाद गुजराती गजल तवज्जो चाहूंगा मैं यहाँ पर जितने भी दोनों स्टेज शौरा हजरात हैं कि કોણ જાણે કેમ આજે અશ્રુઓ છલકાય છે, કોણ જાણે કેમ આજે અશ્રુઓ છલકાય છે, મુझને કોઈ યાદ વારંવાર આવી જાય છે, મુझને કોઈ યાદ વારંવાર આવી જાય છે। અરે કોણ આવે છે પ્રથમ બેમાંથી એ કોને ખબર, કોણ આવે છે પ્રથમ બેમાંથી એ કોને ખબર। અરે આપ આવો છો કે મારું મોત આવી જાય છે, આપ આવો છો કે મારું મોત આવી જાય છે। અને વાત એવી છે કે કઈ કહેવાય ના, વાત એવી છે કે કઈ કહેવાય ના, અને કહ્યા વિના પણ હવે રહેવાય ના, અને કહ્યા વિના પણ હવે રહેવાય ના। અરે તુજને બેસાડું હૃદય મંદિરમાં પણ તુજને ભગવાન તો કહેવાય ના, तुझने भगवान तो कहवाय ना, तुझने भगवान तो कहवाय ना। અને વિરહ વેદના ને હૃદયમાં છે પીડા, પીડાજી ભાઈ વિરહ વેદના ને હૃદયમાં છે પીડા। નસે નસમાં આજે તો ફડકા પડે છે, નસે નસમાં આજે તો ફડકા પડે છે। અરે સમય છે ઘણો આવો આવનારા, સમય છે ઘણો આવો આવનારા। હજી પણ ઘણી ઉર્મિઓ સળવળે છે, હજી પણ ઘણી ઉર્મિઓ સળવળે છે। ઇજાજત ચાહુંગા મરેલા સાપના ભારા સંગરવાનો સમય આવ્યો, મરેલા સાપના ભારા સંઘરવાનો સમય આવ્યો। અરે હવે તો નીચના પડછાયાથી ડરવાનો સમય આવ્યો, હવે તો નીચના પડછાયાથી ડરવાનો સમય આવ્યો। અને વિમુખ થઈ ગયા એ માર્ગદર્શક તોય સમજાયું, વિમુખ થઈ ગયા એ માર્ગદર્શક તોય સમજાયું। કોઈની આંગળી ઝાલીને ફરવાનો સમય આવ્યો, કોઈની આંગળી ઝાલી ને ફરવાનો સમય આવ્યો। અને સમયની આંધીઓથી ઘર સુરક્ષિત રાખવા માટે, સમયની આંધીઓથી ઘર સુરક્ષિત રાખવા માટે અરે હૃદયના બારણા સૌ બંધ કરવાનો સમય આવ્યો, હૃદયના બારણા સૌ બંધ કરવાનો સમય આવ્યો। અરે જીવનભર કોઈની પાસે કશું માંગ્યું નથી તો પણ, જીવનભર કોઈની પાસે કશું માંગ્યું નથી તો પણ અરે હવે તો મોત સામે હાથ ધરવાનો સમય આવ્યો, હવે તો મોત સામે હાથ ધરવાનો સમય આવ્યો। અને ચઢ્યાતા નેવના પાણી ખુશી થઈ મોભની ઉપર, ચઢ્યાતા નેવના પાણી ખુશીથી મોભની ઉપર અરે સ્નેહમાં ઓટ આવીને ઉતરવાનો સમય આવ્યો, સ્નેહમાં ઓટ આવીને ઉતરવાનો સમય આવ્યો। અને હતી આશા કે ભવસાગર તરી જઈશું હવે આજે, હતી આશા કે ભવસાગર તરી જઈશું હવે આજે। હવે તો છીછરા પાણીમાં તરવાનો સમય આવ્યો, હવે તો છીછરા પાણીમાં તરવાનો સમય આવ્યો। ઇજાજત ક્ષેત્રાજી કો મતલબ દોષ બીજી વાત શુક્રિયા। શ્રદ્ધાનો વિષય હો તો પુરાવાની શી જરૂર, શ્રદ્ધાનો વિષય હો તો પુરાવાની શી જરૂર, કુરાનમાં તો ક્યાંય નથી વિષય નથી। મને તારાથી દુઃખ છે એનું મને દુઃખ નથી, મને તારાથી દુઃખ છે એનું મને દુઃખ નથી, પણ મને તારાથી દુઃખ છે એનું તને દુઃખ નથી ને, એ જ મારું દુઃખ। ભાઈ वली खान 500 की नोट लेके नहीं आ रहा, मैं इसके लिए तेरे हिरमा नसीबों की भी क्या तकदीर है ताकि, तेरे हिरमा नसीबों की भी क्या तकदीर है ताकि, बैल सूरत वही जिंदा वही जंजीर है ताकि, वो सुबह कटती
लगती है कि हर बात कहने पर यहाँ आती है। वो तेरी महफिल में जब आ जाती है तकरीर रहता चलिए साहब, तमन्ना पूरी हुई। उंगलियां कांपती है नफ्स की रफ्तार के साथ। उंगलियां कांपती हैं नफ्स की रफ्तार के साथ। खुद मसीहा भी न चल दे कहीं बीमार के साथ। खुद मसीहा भी न चल दे कहीं बीमार के साथ। वो साया देते हुए अशजार भी मिल जाएंगे। सदर की जमा अशजार, साया देते हुए अशजार भी मिल जाएंगे। आप चलिए तो सही वक्त की रफ्तार के साथ। आप चलिए तो सही वक्त की रफ्तार के साथ। आइए दोस्तों, वक्त की रफ्तार के साथ अगर कोई शायर चलता है तो वो इस तरह से कहता है कि खुदा ने अशरफ मखलूक कहते दुनिया में तरह तरह की मुसीबत में डाल दिया। खुदा ने अशरफ मखलूक कहते दुनिया में तरह तरह की मुसीबत में। बात इसमें पैगाम है। शेर बड़ा अच्छा है। वक्त की नफ्स पे जो लोग नजर रखते हैं, हाँ वही लोग जमाने की खबर, वही लोग जमाने की। ये ऐसे शेर तकलीफ करने वाले शायर का नाम है शबनम अंसारी। गुजारिश करूंगा उनसे कि तस्वीर का और अपना शुक्रिया तमाम लोगों का तहे दिल से, और खासतौर से तमाम दोस्त हज़ार शामिल हज़ार दोस्तों। आज का एक शानदार मुशायरा गुजरात साहित्य उर्दू अकेडमी की और साइन इंडिया की जानिब से मुश्तरका तौर से मुनक़िद किया गया है, और जिसकी खूबसूरत सदारत फरमा रहे हमारे नहायत ही अजीज दोस्त खालिद साहब, और निज़ामत एक शानदार तरीके से आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं जनाब बशर रिजवी साहब। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस मुशायरे की कामयाबी का सबसे बड़ा सहरा आपके सर है। उसके बाद अगर किसी को जाता है तो बशर रिजवी हो जाता है। शुक्रिया बहुत। जनाब मेरे बहुत नजदीक बैठे हुए हैं, मेरे छोटे भाई हैं जनाब जैनुल आबदीन साहब, लेकिन इनका मकाम बहुत बड़ा है। भले मैं वो छोटे लगते हैं, उम्र में छोटे बनते, अल्लाह के फजल से वो अपने कर्म से और अपने फल से बहुत आगे हैं। साथ ही साथ मैं वली खान को कैसे भूल सकता हूँ। जनाब वली खान एक ऐसी मजालिक शख्स हैं जिन्होंने उर्दू के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। उर्दू को फरोग के लिए ताजिल जुमलों की और शायरों की हमेशा हौसला अफजाई करते रहे हैं। एवार्ड्स वगैरह वो देते रहे, जो जिस काबिल रहा उसको उन्होंने नवाजा है। मैं कहते हुए तमीज़ पेश करता चलूँ कि हम लोग अपने बच्चों की परवरिश में उनका मुस्तकबिल बनाने के लिए, घर बार संवारने के लिए, बच्चों को अच्छी तालीम दिलाने के लिए अपने आप से बेगाने हो जाते हैं। जब हम अपने आप से बेगाने हो जाया करते हैं तो हमें कहीं ब्लड प्रेशर या जो अपने कई तरह की बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह और डायबिटीज वगैरह, तो हमको एक मशवरा है मेरा, वो सुना रहा हूँ मैं आपके सामने। बिल्कुल हल्की फुल्की नजर तहत को सुना रहा हूँ कि जात से राब्ता जरूरी है। खुद से रब्त रखना, जात से राब्ता जरूरी है, घर में एक आईना जरूरी है। जात से राब्ता जरूरी है, घर में एक आईना जरूरी है, और मेरी खामोशियों को है मालूम। बशर साहब समाज फरमाएंगे, मेरी खामोशियों को है मालूम, मेरी खामोशियों को है मालूम कब कहाँ बोलना जरूरी है। मेरी खामोशियों को है मालूम कब कहाँ बोलना जरूरी है। और जब भी अंदेशा हो भटकने का, जब भी अंदेशा हो भटकने का, रास्ता पूछना जरूरी है। जब भी अंदेशा हो भटकने का, रास्ता पूछना जरूरी है। और भूल हो तो माफ हो जाए, भूल हो माफ हो जाए, जुर्म हो तो सजा जरूरी है। भूल हो तो माफ हो जाए, जुर्म हो तो सजा जरूरी है। और जिंदगी सबके लिए सामने नज़र कर रहा हूँ शेर बशर भाई, जिंदगी बेवफा सही लेकिन, खासा समाज फरमा वाली खान, जिंदगी बेवफा सही लेकिन जिंदगी से वफा जरूरी है। जिंदगी बेवफा सही लेकिन जिंदगी से वफा जरूरी है। और जिंदगी बेवफा सही लेकिन जिंदगी से वफा जरूरी है। और खुद को लुत्फे करम
कुछ तो लुत्फे सफर मिले शबनम। जिंदगी के रास्ते में अगर खुशियां ही खुशियां तो कोई मजा नहीं, तकलीफ आना जरूरी है। कुछ तो लुत्फे सफर मिले शबनम, पुरखतर रास्ता जरूरी। कुछ तो लुत्फे सफर मिले शबनम। अरे गजल के कुछ शेर और पेश करूं। पहले तो एक कुछ शेर और सुना देना चाहता हूं, याद आ रहा है कि क्या बात है क्यों हरदम तू इतना संवरता है। आईना सिंबल है सच्चाई का। क्या बात है क्यों हरदम तू इतना संवरता है, मैंने ये सुना है तू आईने से डरता है। क्या बात है क्यों हरदम तू इतना संवरता है, मैंने ये सुना है तू आईने से डरता है। और फनकार का फन पहले पत्थर में उतरता है। फनकार का फन पहले पत्थर में उतरता है, पत्थर में छुपा चेहरा तब जाके उभरता है। फनकार का फन पहले पत्थर में उतरता है, पत्थर में छुपा चेहरा तब जाके उभरता है। और अल्लाह से गजल से कुछ शेर पेश करता है। इक़्तिदार कहते हैं सत्ता को, और दुनिया का सबसे खतरनाक अगर कोई नशा है तो वह सत्ता का नशा है। समाज करना है। इक़्तिदार एक लफ्ज है पर्शियन का जिसके मायने है सत्ता है। किसके इक़्तिदार का नशा नफरतों का जहर भर गया। किसके इक़्तिदार का नशा नफरतों का जहर भर गया। किसके इक़्तिदार का नशा नफरतों का जहर भर गया। नफरतों का जहर भर गया। मेरे हंसते गाते शहर की रौनकों को खत्म कर गया। मेरे हंसते गाते शहर की रौनकों को खत्म कर गया। किसके इक़्तिदार का नशा। बकरे ये शेर तमाम हजरात की नजर करता था। वो तो कह रहा था कि है समंदरों से दोस्ती। वो तो कह रहा था कि है समंदरों से दोस्ती। वो तो कह रहा था कि है समंदरों से दोस्ती। है समंदरों से दोस्ती। सिर्फ एक बूंद के लिए जो तड़प तड़प के मर गया। वो तो कह रहा था कि है समंदरों से दोस्ती। वो तो कह रहा था कि है समंदरों से दोस्ती। है समंदरों से दोस्ती। सिर्फ एक बूंद के लिए जो तड़प तड़प के मर गया। किसके इक़्तिदार का नशा। और ये शेर बतौर खास है हमारे गुजराती में कहावत है, चाय करता खेतली ग्राम। बराबर बस एक शेर को देखे। और ऐसे लोग इनके करीब बहुत ज्यादा हैं। बात फरमाए।
मेरी असलियत के सामने तेरा हर फरेब खुल गया। मेरी असलियत के सामने तेरा हर फरेब खुल गया। मेरी असलियत के सामने तेरा हर फरेब खुल गया। तेरा हर फरेब खुल गया। मैं जरा सा मुस्कुरा दिया, तेरा कह कहा बिखर गया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी असलियत के सामने बिल्कुल मुहावरा फिट है ना, चाय करता कैसे गरम। अरे वो तो चाहे तो मीठी है, लेकिन वो ज्यादा मिठास का जिक्र करता है। बेचारे वो हंसी रहे लीडर साहब, और उनके चमचा कहता लगा है। मेरी असलियत के सामने तेरा हर फरेब खुल गया। मेरी असलियत के सामने तेरा हर फरेब खुल गया। तेरा हर फरेब खुल गया। मैं जरा सा मुस्कुरा दिया, तेरा कहता बिखर गया। मैं जरा, और ये शेर मैं मुजाहिद उर्दू बशर भाई, बताओ। मुजाहिद उर्दू वली खान साहब के नजर कर रहा हूँ। समाज फरमान फरमाए सबके काम की चीज है। तंज करने वाली हर जुबान मेरा मांगने वाली, तंज करने वाली हर जुबान मेरे हक में आईना बन। तंज करने वाली हर जुबान मेरे हक में आईना बनी। मेरे हक में आईना बनी। अपने ऐब देख देख कर रफ्ता रफ्ता मैं संवर गया। तंज करने वाली हर जुबान मेरे हक में आईना बनी। तंज करने वाली हर जुबान मेरे हक में आईना बनी। मेरे हक में आईना बनी। अपने ऐब देख देख कर रफ्ता रफ्ता मैं संवर गया। मेरे हंसते गाते शहर की रौनकों को खत्म कर गया। मक्ता हजरे से जिसकी जिसकी धड़कनों पे अब तलक शबनम अपना नाम था लिखा। जिसकी धड़कनों पे जिसकी धड़कनों पे अब तलक, दरअसल तलक लफ्ज़ मतलूब है उर्दू में, लेकिन जरूरत के तहत हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जिसकी धड़कनों पे कल तलक शबनम अपना नाम था लिखा। जिसकी धड़कनों पे कल तलक शबनम अपना नाम था लिखा। शबनम अपना नाम था लिखा। आज जाने बात क्या हुई, सुन के मेरा नाम डर गया।
ये भी काम बड़ा अजीब सा है। जैसे जैसे लोग जिस लेवल के लोग आते हैं तो उस तरह लेवल पे उसको मिलाना पड़ता है। माइक वालों का बहुत बहुत एक इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर भाई। जी शबनम साहब अभी पढ़ रहे थे, आप लोग बोल रहे थे, इतना अच्छा तरन्नुम, इतने अच्छे अशार कि वो तो कह रहा था कि मेरी है समंदरों से दोस्ती, फिर भी ये मैं सिर्फ एक बूंद के लिए वो तड़प तड़प के मर गया। एक बूंद के लिए कदम कदम पे अगर साजिशें नहीं होती मैं इस जहाँ के बड़े काम आने वाला था। और वो भी भूख प्यास की शिद्दत से मर गया कैसे, जो हाथ देख के किस्मत बताने वाला था। वो एक बूंद की बात कर रहे थे कि सिर्फ एक बूंद के लिए वो तड़प तड़प के मर गया। कि वो तो बता रहा था कई रोज का सफर, जंजीर खींच के जो मुसाफिर उतर गया। वाह बहुत अच्छा। अब अपने आप को कतरा भी कह नहीं सकता, अब अपने आप को कतरा भी कह नहीं सकता। बुरा किया समंदरों से दोस्ती की। कहाँ इशारा है आपका? अब अपने आप को कतरा भी कह नहीं सकता, बुरा किया समंदर से दोस्ती। शबनम साहब ने शेर पढ़ा, मेरी खामोशियों को है मालूम कब कहाँ बोलना जरूरी है। मैं कहूँगा दासुंदरी का शेर है कि बुरा या भला कौन कब बोलता है, बुरा या भला कौन कब बोलता है, ये इंसान के खून में नसब बोलता है। वाह बहुत अच्छा। तो तेरी जबान कतरना बहुत जरूरी है, तुझे मदद है कि तू बार बार बोलता है। यहाँ पर मुशायरे की तकमील होती है, लेकिन एक बहुत अहम बात आप लोगों के सामने करना है, बहुत खास बात करना है। वो ये कि आप जितने लोग बैठे हैं सब अपनी नज़रों से ये बात बताएंगे कि आज का ये मुशायरा, ये महफिल कैसी रही, ये आपको बताना है नज़रों से। और जो यहाँ पर असीम भाई, भट्ट साहब, धीरू भाई, ये लोग बैठे हैं, हम उनसे ये पूछेंगे कि आपको यहाँ पर कैसा लगा, क्या आप सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे। वजह उसकी ये है कि सुनना क्यों जरूरी है वो मैं बताऊँ आपको। क्योंकि रौनक साहब की किताब का इजरा है, यानी पुस्तक विमोचन, इनकी एक किताब छपी है मौसम बहारा, वो किताब आप लोगों के सामने पेश की जाएगी। और जरूरी तो खास ये है कि 2 लिपि में छपी है, गुजराती में भी और उर्दू गुजराती दोनों में छपी है। वो किताब आपके सामने पेश की जाएगी। आपको पता होना चाहिए किताब का मतलब क्या है, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। काजी साहब यहाँ बैठे हुए, मैं अगर एक लफ्ज कहूँगा कि हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबका किसी न किसी तरीके से एक किताब से वास्ता है। हम एक अहले किताब हैं। अगर मैं मुसलमान हूँ तो मेरा ईमान कुरान पे है, आप हिंदू हैं तो आपका ईमान जो है गीता पे है, अगर कोई ईसाई है तो उसका ईमान जो है बाइबल पे है। हर आदमी का अपना अपना अपनी अपनी एक किताब है, वो अपनी एक किताब के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि किताब की कितनी अहमियत है, किताब की कितनी अहमियत है। हम अहले किताब हैं, हमारा तारुफ, हमारी पहचान एक किताब की वजह से। अगर गीता, बाइबल ये सब नहीं होती, कुरान नहीं होता तो हमको कौन पहचानता? हम क्या है, जानवर की तरह जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन एक किताब ने हमें बताया कि हमें जिंदगी कैसे गुजारना है, हमें चलना कैसे, हमें बैठना कैसे। तो आज एक किताब का, वो किताब के बारे में हमारे यहाँ पे जितने भी स्कॉलर लोग बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि सब बेहतरीन बोलेंगे और आपको सबको सुनना चाहिए। करो तो हम एक सिंपल पेश करते हैं कि सबसे पहले हमारे दरमियान एक मौजूद हस्ती जो महफिल अंदाज में अपनी बात रखने वाली है, तो उर्दू साहित्य अकेडमी के वो मेंबर भी हैं और हमारे दरमियान आज मेंबर बन गया है, मेहमान बन गया है। मैं गुजारिश करूँगा कि आज के इस मुशायरे में हमें कैसा महसूस हुआ, और हमारे जो मेहमान अशोक भाई यहाँ बैठे हुए, भट्ट साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अश्विन भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, इनको भी एक तहरीक मिले कि हमको यहाँ पर किस तरीके से बोलना है। कारी साहब यहाँ तशरीफ फरमा, मैं चाहूँगा कि कारी साहब बहुत अच्छा यहाँ पे बोल लेंगे। मैं चाहूँगा कि अगर आवाम में से अगर हमने किसी को बुलाया तो वो भी बहुत अच्छा यहाँ पे बोल लेंगे, क्योंकि उसको अपनी किताब के बारे में बोलना है। वो
किताब के बारे में अपनी माँ के बारे में अगर किसी को बात करना, अपनी माँ की तारीफ करो तो कोई पीछे नहीं हटेगा। सब कहेगा मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरे को गरम गरम रोटी खिलाती है, मेरा गरम बिस्तर को सुलाती है, मैं गीला हो जाता हूँ तो मुझे सुखा देती है, कुछ गीले में कौन तारीफ करेगा? अपने बाप के बारे में कौन, अरे मैंने कभी जिद करी है उसने मुझे हर चीज मुहैया कर दी। तो हम तो उससे बढ़ के किताब है हमारे, किताब के बारे में हमको बात करना। तो मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहले ज़ैनुल आबिदीन साहब से कि मैं माहौल देखूं, उसके बाद किताब को सामने लाऊं। 2 लिपि में किताब है, गुजराती में भी है, उर्दू में भी है। पन्नी में जबकि वो पहली बार आप लोगों के सामने खुलेगी, तो वो किताब खुले उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा मौसम जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब से तशरीफ लाएं और अपने तासुरात पेश करें, उसके बाद किताब का विमोचन है। बराबर, सटी का रकम परफेक्ट है आपकी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। गुजरात उर्दू साहित्य अकादमी, शाहीन इंडिया कल्चर अकादमी की जानिब से गुजरात सरकार हमेशा સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસની જે વાત કરે છે એ આજે આ મંચના માધ્યમથી आप स्टेज पर जो बोर्ड बैनर लागेला है पुस्तकનું विमोचन मौसम बहार रोनक खंभाती साहब, सहाय आपनार गुजरात उर्दू साहित्य अकादमी, गुजरात सरकार અને એના કરતા વિશેષ આજની રોનક ખંભાતી સાહેબે અને શાહીન ઇન્ડિયા કલ્ચર અકાદમી આ મહેફિલ निर्माण सर्जन जो रौनक जेने मारी भाषाમાં ગુજરાતીમાં કે ઉર્દુમાં ગંગા જમના તહેજીબ કહી શકાય એવી આજે આ રૌનક થઈ છે। સામે પિનાકીનભાઈ બેઠા છે, ભરતભાઈ બેઠા છે, કાળી સાહેબ બેઠા છે અને ભરતભાઈ બેઠા છે। આવી મહેફિલ જેને હિન્દુસ્તાનનું ગંગા જમને તહેજીબ પર જોવાની હોય તો આજે તારીખમાં ગુજરાતમાં ખંભાત આવીને આ મહેફિલ જોઈ। આજની તારીખમાં લખી લેજો 14 ડિસેમ્બર 2025 गुजरात में गंगा जमुना तहजीब जहाँ शहर काशी बैठा हो, पिनाकिन भाई बैठा हो, भरत भाई बैठा है, दुलके साहब बैठा है અને ગુજરાત સરકાર આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરે છે। તેનું સહાય ગુજરાત સરકાર આપે છે, ગુજરાત ઉર્દુ સાહિત્ય અકાદમી આપે છે, જેના જે અધ્યક્ષ છે ભાગેશભાઈ ઝા સાહેબ છે, જેના જે મહાપાત્ર છે એ જયેન્દ્રસિંહ જાદવ સાહેબ છે, જે પોતે સરકાર ચલાવે છે, જે ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીનું સર્જન કરે છે। એવા સંસ્થાને આજના કાર્યક્રમ માટે એમને જે સહાય આપ્યું છે હું દિલથી ગુજરાત સરકારનો આભાર વ્યક્ત કરું છું, ગુજરાત ઉર્દુ સાહિત્ય અકાદમીનો આભાર વ્યક્ત કરું છું, શાહીન ઇન્ડિયા કલ્ચર અકાદમીનો આભાર વ્યક્ત કરું છું, જેમના સરસ ખંભાતની અંદર જે ખંભાત એવી જગ્યા છે જે હિન્દુસ્તાનનું એક સ્પેસ જ્યારે સમુદ્રની હાજર પણ હતા એવી જગ્યા છે, જ્યાં મોટા આસ્થાના છે, દરેક જ્યાં એક્સપોર્ટ થાય છે એવી જગ્યા પર આજે ગુજરાતનું ગંગા જમના તહેજીબનું કલ્ચર પૂરું પાડે છે। અને બે શબ્દોમાં કે જે બધાએ ઉર્દુની વાત કરી, શબનમ સાહેબ, बसर साहब उर्दू की बात करें, वो तारीफ नहीं लो, खाली बे अल्फाज में उर्दू क्या है, उर्दू किसको कहते हैं, लिखा नहीं था लेकिन जमाने पे आ गया। जो लफ्ज दिल को जोड़ते हैं, जो लफ्ज दिल को जोड़ते हैं वो उर्दू है। वो बात हुई, जो लफ्ज दिल को जोड़ते हैं वो उर्दू है। आज की जो महफिल बनी हुई है, इधर भरत भाई है, खालिद साहब है, ये उर्दू है, ये इंसान है, ये उर्दू है। इससे ज्यादा कुछ कहने की तो हमारे शायरों ने, अकील साकिब साहब ने, शबनम साहब ने हमारी हर तरीके से देशभक्ति की बात भी करी है। हम जो है सब पे कफन लेके घूमते हैं। हमारे अकील साकिब साहब ने एक हिंदुस्तान की एज ए मुस्लिम उन्होंने जिस जज्बा से अपने जो है अशार पढ़े, मैं दिल से कुछ सलाम करता हूँ कि हमेशा जिंदा रहेंगे। उनकी किताब के नाम भी अभी मैं जिंदा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ हमेशा जिंदा रहेंगे। जो उनका जज्बात है, जैसे हिंदू साहब को लोग याद करते हैं, ऐसे हमारे अकील साहब को लोग याद करेंगे। तो उनका जो जज्बात उन्होंने जो आज एक विशाल कायम करी है, तो उनको सलाम है। शबनम साहब ने और हमारे साहिल साहब जिन्होंने वालिद के नाम पर, फादर के नाम पर
जो अशार पड़े हैं वो दिल को नहीं, मैं समझता हूँ हर एक आदमी अपनी जिंदगी से गुजरा है। जो नौजवान है इसके बाद गुजर चुके हैं, या जो हयाती हैं वो अपने बच्चों में अपने बच्चों देखते हैं कि हमारे बच्चे कैसे होंगे, हमारे वालिद कैसे थे, हमारे फादर कैसे थे, हमारे पापा क्या करते हैं, कैसे हमको जो है इस यहाँ तक पहुँचाया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ साहिल साहब का, उन्होंने एक अच्छी उर्दू में बल्कि हमने गजल पढ़ी, आपके वक्त लगे, हर एक अपने अंदाज में हमारे सपने कहने के, हमारी बहन गुलशन जरीश ने, रजिया जी ने, सभी ने जो है अच्छे तरीके से जो है पढ़ा है। और जैसा कि शब्दों से आप कह चुके हैं कि आज के अगर कोई मुकम्मल संचालन की और भी जिन्होंने काम करा है हमारे हारून मुश्तर साहब को, जिनके अभी हाल ही में एक पुस्तक भी उनकी शाया हुई है। आपके सब बात ही करने की बात कुछ ही नहीं है, दिल की बात जुबान पे लेकर आ गए। लेकिन आज आपने सब बातें मुकम्मल गुजराती में भी आपने जो है 500 करोड़ कमा लिया, आपके लास्ट में आपने जो है पूरा दिल जीत गए। वली खान साहब 500 आपने ले ही लिए, भाव में समझ चुके उनके मुद्दे, अपना काम कैसे करो, तो आपने अपना काम कर लिया। अभी वक्त है रश्मि इजरा का। रौनक खंबारी साहब ने मौसम में बाहर नाम की जो अपनी किताब 2 लिपि में लिखी है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जबान है, हम उर्दू या गुजराती या हिंदी, कोई भी जबान किसी मजहब की नहीं हो सकती। जबान सिर्फ इंसान की होती है, जबान सिर्फ इंसान की होती है। अगर हम किसी एक जबान को मजहब से जोड़ेंगे तो जबान ही नहीं है, वो आतंकवाद हो गया। आतंकवाद किसी का होता है, लेकिन मजहब का आतंकवाद सिखाता नहीं है। हमने बात किताब भी करी, जितने भी किताबें यहाँ पर हैं, जितने किताब पर जिक्र हुआ, जितने किताब पर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हमारे कुरान शरीफ हो, गीता हो, भगवत हो, बाइबल हो, कहीं आतंकवाद का नाम ही नहीं है। तो आतंकवाद कहता ही नहीं किसी किताब में, किसी मजहब का आतंकवाद दिखा ही नहीं है। हमारे हम जब हज पढ़ने जाते हैं तो हमारे को एक बाल पे हमारे टूट जाता है तो हमको उसको गुनाह होता है, हमको उसका कफारा अदा करना पड़ता है, हमको उसका सदका अदा करना पड़ता है। तो हम उस मरने वाले बचते लोग हैं। आतंकवाद इस्लाम को जोड़ ही नहीं सकता। हम नमाज भी पढ़ते हैं तो अपना 5 वक्त नमाज पढ़ने तो वुज़ू करना पड़ता है, पाकी रखनी पड़ती है। पाकी आधा ईमान है, सफाई आधा ईमान है। हमारे पड़ोसी का खुदा है, पहले उसको खाने जाओ, बाद तक खाना खाओ, ये हमारा ईमान है। तो इस्लाम में, मजहब में कहीं हमारा आतंकवाद हो ही नहीं सकता। आतंकवाद किसी की जबान हो ही नहीं सकती। आतंकवाद किसी जबान है तो वो खुद ही आतंकवादी है, लेकिन इंसान की जबान है वो हम सबकी जबान है। तो इसी बात को मैं मुख्तसर करते हुए तो उर्दू जो है वो जबान किसी मजहब की नहीं है, उसको मजहब से कहीं नहीं जोड़ा जाए। अभी हमारे समझो गुज़िश्ता 28 नवंबर को दिल्ली में हमारे अल्पसंख्यक विभाग के केंद्रीय मंत्री कर्नल रिज्जू जी ने उर्दू के लिए बड़ी अच्छी बात करी। उसी बात पर उर्दू सिर्फ इंसान को जोड़ता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑन आप चेक कर सकते हैं। रिज्जू जी ने कहा है कि उर्दू जो है एक इंसान की जबान है, कहीं पर भी उसको एक धर्म से न जोड़ा जाए। आज साहित्य जितना भी पढ़ते हैं, जितना भी हमने लुत्फ लिया, जितने हिंदी आप देखिए, आज एक हिंदी फिल्म बनती है, एक हिंदी फिल्म को उसमें उर्दू के अल्फाज होते हैं, उसमें हमको समझ में ऐसी लैंग्वेज होती है, ऐसी भाषा होती है। हम दिन भर जितना रूटीन यूज करते हो वो बिना किताब बोलते हो, भरते बोलते हो या गाड़ी साहब बोलते हो, 50% उसमें उर्दू होती है। किसी वजह पे जबान है नहीं, तभी वो फिल्म 200 करोड़ का बिजनेस करती है, 500 करोड़ का बिजनेस करती है, 1000 करोड़ का बिजनेस करती है। ऐसी कोई फिल्म बताओ जो उर्दू हिंदी के बिना बनी हो, तो उसने 1000 करोड़ का बिजनेस कराओ। आज तो मूवी है, आज मूवी है જેની અંદર ઉર્દू અને હિન્દીનો સમાવેશ ના હોય, જેને 500 करोड़ 100 करोड़ बिजनेस पार करने एक पर नाम बताओ। अच्छा, जिसमें हिंदी और उर्दू का जो अपनी जबान में बनी हुई है, ऐसी हजारों फिल्में हैं जो 100 करोड़ के ऊपर बिजनेस पार कर चुकी है, क्योंकि वो जबान को जोड़ने की जबान है। तो किसी एक की जबान नहीं है। वो सलमान खान को लोग कहते जाते हैं, अक्षय खन्ना को लोग सुनते जाते हैं, वही उर्दू है, वही हमारी जबान से रहती है। फिर से एक बार मैं तहे दिल से गुजरात सरकार का आभारी हूँ। माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब भूपेंद्र भाई पटेल साहब, जिस तरीके से गुजरात सरकार को सबका साथ सबके विकास की ओर से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सुफी संवाद करके, आपको याद होगा कि सबसे पहले जब 2014 के बाद में 2014 से पहले जो सरकार थी, उन्होंने कभी इस चीज को तोड़ने की कोशिश नहीं करी, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, आप लोगों को आश्चर्य में एक बात और कहता, हालांकि मंच इस तरीके का नहीं है, लेकिन बात इंसानियत की है। दुनिया के अंदर 51 मुल्क है, कितने मुल्क हैं? 51 इस्लामिक कंट्रीज है। साहब आप पहले जानते होंगे 51
इस्लामिक कंट्री जो प्योर इस्लाम को हमसे ज्यादा मानने वाले लोग हैं, मैं कहूंगा हम प्योर इस्लामिक कंट्री है, उसमें से 23 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने हमारे वजीर आजम, हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के साथ, हिंदुस्तान के साथ अब उनको वहां का बेस्ट जो अवार्ड होता है उससे नवाजा माननीय नरेंद्र मोदी जी को। उसमें दुबई, आप लोगों को मालूम है, जानकारी पता कर रहा हूँ कि 23 आप ऑन रिकॉर्ड लिस्ट दे सकते हैं, 23 कंट्री इस्लामिक ऐसी है, दुबई, सऊदी अरब, ऐसी जो ओमान ऐसी कंट्री है जहां पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक अवार्ड दिया गया। ये हमारे कितनी गौरव की बात है। ऐसे हिंदुस्तान हम लोग ले रहे हैं, हिंदुस्तान में जो है उन्होंने सूफीज्म को बढ़ा देने के लिए सूफीज्म सबसे पहले 2014 के अंदर उन्होंने पूरी सूफी कॉन्फ्रेंस की। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग, कई लोग कहते होंगे ऐसी कोई भी योजना नहीं है जहां पर जो है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जहां पर किसी एक धर्म को बैकअप करा गया हो, किसी समाज लोगों को छोड़ा गया हो। सबका साथ सबका विकास का नारा है, विशेष तौर पर सरकार आगे लेके चलती है। हम उसी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं जो आप गुजरात को केंद्र पर राज कर रहे हैं। तो मैं दिल से बहुत पेश करूंगा माननीय भूपेंद्र पटेल जी को, गुजरात सरकार को, जिन्होंने ये सहाय मंजूर कर और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। फिर से एक बार साइन इंडिया टाइमिंग शब्द आजमी साहब का, अहमदाबाद जितने शायर है, बाकी जितने शायर है, सभी का शुक्रिया। आपने आज का अच्छा यहाँ पर बजट सुनाई है, दिल से एक बार अल्लाह हाफिज़, जय जय गणेश। बहुत बहुत शुक्रिया।